So hello guys, today we are going to learn a technique which will help you a lot in time, speed, distance, in proportions, ratio proportions, percentages, etc. So basically सीखेंगे क्या कि how a number when it is increasing by 10% तो वो घटता है तो कितने से reduce होता है. So ये आपको बहुत ही brilliant technique use होने वाला है. This is taught in the best coaching institute. So I'm going to share this to you. Do apply this. We'll also discuss some problems which will make it very clear कि इसका applications कहाँ पे हो सकता है. So I'm going to make a complete series of the shortcut techniques taught in the best coaching institutes for CAT and all the other major entrance exams. I hope please subscribe to this channel if you want to learn cool techniques to solve the questions in the in less and lesser time, and how to practically use them in the question answers. So yeah, I'm not going to touch very basics क्योंकि हाँ वो basic आपको material कहाँ से भी मिल जाएगा. I'm not going to actually delve into the basics of each topics. So what I've decided is I'll tell you the cool tricks that I have applied to many of the CAT and IFT and TISNET and SNAP, all these exams. So let's get started. Basically these are my notes which I used to refer, which I used to note down cool techniques. So I'm basically going to cover all the techniques that I've written down in my notebook so that it is beneficial for you. All right, number, first of all let's take a number 100. अगर 100 को if we increase by 10%, if we are increasing 100 by 10%, what will you get? 110, right? अभी मैं बोलूँगा 110 को how much should I decrease 110 so that I'll get 100. Okay, so many people say कि यार 100 को 110 बनाने के लिए 10% इंक्रीज किया तो 110 को 10% डिक्रीज करो आपको 100 मिल जाएगा. सो नॉट लाइक दैट गाइज. ओके, तो आपको बेसिकली बहुत सिंपल से मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू इंक्रीज डिक्रीज, क्या एग्जैक्ट वो रेशो आना चाहिए. बिफोर गोइंग टू दिस थिंग आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. यू शुड राइट दिस डाउन, यू शुड मेक नोट्स ऑफ दिस. ठीक है, मैंने एक चार्ट बना के रखा था. दीज थिंग्स यू शुड डेफिनेटली आपके फिंगर टिप्स पे और आपके ऐसे जबान पे होना चाहिए. आपको रात को नींद में भी पूछा कि ये क्या है, ये होना चाहिए, ये चीज़ है वो. आपको ये चीज़ें पहले अच्छे से करनी है. सो 1 by 1 इज 100%. ओके, 1 by 2 इज 50%. 1 by 3 इज 33.33. 1 by 4 is 25%. ये सब परसेंट. 1 into 100 is 100. 1/2 into 100 is 50. 1/3 into 100 is 33.3. 1 by 4 into 100 is 25. Please note it down पहले, फिर I'll tell you the application. ठीक है. 1 by 5 is 20%. 1 by 6 is 16.66. 1 by 4 is 14.28. 1 by 8 is 12.5. 1 by 9 is 11.11. 1 by 10 is obviously 10. 1 by 11 is 9.09. 1 by 12 is your 8.33. सो बेसिकली आपको पहले ये सब नंबर्स लिख लो और आपको ये मुंह ज़बानी याद होने चाहिए. ठीक है, तब जाके मेरी ये आगे वाली टेक्निक विल बी वेरी यूजफुल. दिस विल बी एनीवे यूजफुल टू यू इन ऑल द एग्जाम्स. ओके, ये फर्स्ट ट्रिक है जो हर कोचिंग क्लास में पढ़ाई जाती है. अगर आपके इसमें नहीं पढ़ाई है तो नोट डाउन कर लो यार, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, सो अभी आपको मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ. लेट्स सपोज देयर इज अ नंबर. ठीक है, 100 को 10% से मैंने बढ़ाया, कितना मिलेगा? 110. इसको मैं कितने से रिड्यूस करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा. नॉर्मल टेक्निक से कैसे है, बेसिकली परसेंटेज चेंज क्या होता है? 100 से 110, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन 100 इज योर परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन 100. नाउ परसेंटेज चेंज कैन बी इंक्रीज, कैन बी डिक्रीज. ऑलराइट, सो ये जब यहाँ से 100 से 110 जा रहा है तो दैट विल बी परसेंटेज चेंज विच इज परसेंटेज इंक्रीज. 110 से 100 आ रहा है so it will be percentage change which is percentage decrease. So percentage increase देखते हैं. percentage increase, final value क्या है? 110. initial value is 100. okay, divided by 100. so and into 100 basically. so यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 10 by 100 into 100 which is basically 10%. so basically ऐसे आता है which is very obvious. 100 से 110 जाने में 10% इंक्रीज होता है. और अगर हम देखेंगे 110 से 100 जाने में कितना परसेंटेज डिक्रीज होता है? सो परसेंटेज डिक्रीज विल बी फाइनल वैल्यू विच इज 100. आप डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज होने के बाद विच इज फाइनल वैल्यू
110 से you are getting to 100, so 100 will be your final value, right? So final value minus initial value, which is 110 upon this is initial value. यहाँ पे क्योंकि इनिशियल वैल्यू 100 था इसलिए मैंने 100 लिखा था. फॉर्मूला इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू. ठीक है. सो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 100 थोड़ी है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ये है बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस. व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम 100 टू 110 इनिशियल वैल्यू इज दिस, फाइनल वैल्यू इज दिस. व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम 110 से 100 इनिशियल वैल्यू इज दिस, फाइनल वैल्यू इज दिस. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इज 110 क्योंकि ये डिक्रीज है इनटू 100. बेसिकली आपको इसका मॉडुलस लेना पड़ता है. सो 10 इसका आपने मॉड ले लिया, 100 माइनस 10 की जगह मैंने 10 लिख दिया बाय 110 इंटू 100. इसको कट दिया विच इज 100 बाई 11. कितना आता है? जैसे हमने अभी देखा था 1/11 का कितना था, जस्ट बैक टू द 1/11 का रेशियो कितना था? 9.09%. सो दिस इज बेसिकली योर परसेंटेज डिक्रीज. सो दिस इज बेसिकली योर 9.09%. 100 से 110 मिलने के लिए यू हैव टू इंक्रीज 100 बाय 10%. 110 से 100 मिलने के लिए यू हैव टू डिक्रीज 110 बाय 9.09%. ठीक है. पहले जैसे मैंने बोला था कि 100 से 110 मिलने के लिए 10% इंक्रीज किया तो 110 से 100 मिलने के लिए 10% डिक्रीज नहीं होता है, 9.09% डिक्रीज होता है विच इज लेस देन 10. सो नोट. ओके, मैं आपको बताता हूँ द टेक्निक. गाइस तो फट से इसका एप्लीकेशन देखते हैं. ठीक है. 100 से 120 जाने के लिए व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? 20%. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल विच इज 120 माइनस 100 बाय 100 इंटू 100 विच इज 20%. ठीक है. अभी 120 से 100 जाने में हमको एक एक चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमेशा की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100. ठीक है. ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ठीक है. 100 से 120 जा रहा है तो 20% इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज. अभी हमको जानते हैं 20% बेसिकली क्या है. 20%, how much is 20%? 20% is basically 20 by 100 which is nothing but 1/5. okay, तो मैं इस 20% को 1/5 लिख सकता हूँ. 20% is nothing but 1/5. okay, so अगर मैं बोलता हूँ कि 100 से 120 जब मैं बढ़ा रहा हूँ बेसिकली 1/5% 20% से उसको बढ़ा रहा हूँ तो 120 मिलता है. सो और हम अगर रिवर्स जाएंगे तो मेरा बेसिक ये बोलता है अगर 1/5 नाउ दिस नंबर 1/5 विच इज 20%. सो बेसिकली आप 1/5 देखोगे 1/5 इज द इंक्रीज. सो आप 1/5 प्लस 1 इंटू 100 करोगे दैट इज हाउ मच? 6/5 इंटू 100 विच इज बेसिकली 5 2 10 120. तो आप 1/5 के फैक्टर से इंक्रीज करते हो 100 को तो 1/5 प्लस 1 करोगे इंटू 100 विल एक्चुअली गिव यू 120. मानते हो? अभी समझ रहा है? जैसे 100 से 110 होने में 10% था. 10% इज नथिंग बट 1/10. 10% इज 1/10, राइट? 10% इज बेसिकली दिस विच इज 10% इज दिस 1/10. ओके. सो मैं 100 से 110 जाने के लिए 1/10 के फैक्टर से इंक्रीज कर रहा हूँ. बेसिकली 1/10 प्लस 1 इंटू 100 विल गिव मी व्हाट? 11/10 इंटू 100 विच इज 110 विच इज योर दिस नंबर. समझ रहा है? बेसिकली ये जो फैक्टर है 1/10 1/5 इसको आप प्लस 1 कर दोगे. बेसिकली प्लस 1 होने से क्या हो रहा है आप देख रहे हो? प्लस 1 होने से कुछ नहीं हो रहा है. जैसे इन दिस केस 100 इंटू 1 प्लस 1/5 100 तो है ही. अगर मैं इसको खोल देता हूँ 100 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1/5. ठीक है. इसका क्या मतलब है? 100 जो है उसको हम 20% से बढ़ा रहे हैं. 20% इज 1/5 तो बेसिकली 1/5 और प्लस 1 भी होगा क्योंकि 100 खुद भी तो नंबर है और उसमें 1/5 का फैक्टर भी ऐड हो रहा है. सो 100 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1/5 5 2 10. सो बेसिकली 100 प्लस 20 विच इज योर 120. ये ऐसा नंबर मिलता है. आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है. मैं बोल रहा हूँ कि 100 से 120 जाने के लिए 1/5 के फैक्टर से इंक्रीज किया. अभी मुझे यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर दे दो कि मुझे सीधा पता चल जाए कि 120 से 100 जाने में डिक्रीज कितना परसेंटेज होता है. समझ रहे हो? जैसे हम पहले निकाल रहे थे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100 वो सब करना ना पड़े. सो आप देखो ठीक से देखना इसको.
100 से 1/100 को 20% से बढ़ाया विच इज 1/5, तो आपको 120 मिला। अगर 120 से मुझे 100 का निकालना है तो बेसिकली जो ये 1/5 है, 1/5 है, ये देखो फॉर डिक्रीज एड न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, एड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर 1/5 + 1 विच इज 1/6। सो बेसिकली फॉर डिक्रीज आपको 1/5 + 1 एड न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर, जो इंक्रीज का फ्रैक्शन है विच इज 1/5, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता होगा, इधर न्यूमरेटर 1 है, इधर डिनोमिनेटर 5 है, तो फॉर डिक्रीज एड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर वैसे ही रखना है सर, डिनोमिनेटर विल चेंज, ठीक है। सो 1/5 की जगह 1/5 + 1 विच इज एडिंग द न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर। सो ये फैक्टर से, ये फ्रैक्शन से आपका डिक्रीज करोगे 120, सो यू विल गेट 100 विच इज बेसिकली 1/6 × 100। अगर इसको परसेंटेज में दिखना है, ये फ्रैक्शन में था तो कितना आता है, 1/6 हमने देखा था पहले, कितना था, 1/5 was 20%, 1/6 was 16.66%। so basically 16.66%। so to get from 100 to 120 you have to increase 100 by 20%, to get from 120 to 100 you have to decrease 120 by 16.66%। समझ रहे हैं बात? ये कैसे आया, हमने यहाँ पे फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू का कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया, वापस बता रहा हूँ। 100 से 120 मिलने के लिए 20% से इंक्रीज किया, 20% इज बेसिकली 20/100 विच इज 1/5, ये फ्रैक्शन याद रखना है, 1/5 मिल गया। इंक्रीज का फ्रैक्शन मिल गया, तो डिक्रीज का फ्रैक्शन मिलने के लिए ये फॉर्मूला है। सो देखो फॉर डिक्रीज ऑफ द फ्रैक्शन एड न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। सो बेसिकली न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, बस एड न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर and keep numerator same, don't be confused, numerator वैसे ही रहेगा। so 1/5 + 1 1/6, इस फैक्टर से आपको डिक्रीज करोगे, बेसिकली दिस इज 1/6। इंक्रीज का फैक्टर 1/5 था, डिक्रीज का फैक्टर आ गया 1/6 which is nothing but 16.66%। so 120 को 120 से 100 मिलने के लिए 16.66% से उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। सेम चीज अगर इंक्रीज के लिए करना है, अगर सपोज एक नंबर है 80 और एक नंबर है 100, सो 100 से 80 मिलने के लिए वो कितने से डिक्रीज होता है, 20%। 100 को 20% डिक्रीज करोगे तो आपको 80 मिलेगा, पता है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर दो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू विच इज 20 बाय इनिशियल वैल्यू विच इज 100 × 100। सो बेसिकली 100 को 20% से कम करोगे तो आपको 80 मिलेगा। अभी आपको जानना है कि 80 से 100 मिलने के लिए, 80 से 100 जाने के लिए कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। ये तो परसेंटेज हो गया क्या, डिक्रीज। 100 से 80 इज डिक्रीज, राइट। सो दिस इज योर परसेंटेज डिक्रीज। अभी कितना परसेंटेज इंक्रीज करूंगा 80 to 100 कि मुझे 80 से 100 मिले। अब ये पहले जैसा सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले हमने डिक्रीज देखा था, इस बार हमको इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। सो ट्रिक वही है, ट्रिक इज द सेम, ओके। सो आपको पता है जो आपको डिक्रीज परसेंटेज विच इज 20%, 20% इज नथिंग बट योर 20/100 विच इज 1/5। सो दिस फ्रैक्शन इज नथिंग बट 1/5। सो आपको इस बार डिक्रीज का फ्रैक्शन मिल गया है, डिक्रीज का फ्रैक्शन मिल गया है, तो आपको इंक्रीज का लाना है। सो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, नोट देखो, फॉर इंक्रीज सबट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है। सबट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड कीप द न्यूमरेटर सेम। So subtract numerator from the denominator, subtract numerator from the denominator। 1/5 को ऐसे ही लिख दिया, क्या बोलता है, subtract numerator from the denominator। So -1 करना पड़ेगा, this is the numerator, this is the denominator and keep the numerator same। This is basically your 1/4। 1/4 is ये आपको फ्रैक्शन मिल गया 1/4। अब 1/4 is what percent? 1/4 is 25%, क्योंकि 1/4 into 100 is your 25%। so you got the answer, आपको आंसर मिल गया 25%। so the decrease from, वापस रिपीट कर रहा हूँ, the decrease from 100 to 80, कितने से 100 को डिक्रीज करोगे 20% से। so आपको इंक्रीज निकालना था, 80 से कितना इंक्रीज करेंगे तो 100 मिलेगा आपको। so डिक्रीज का था 20% which is nothing but 1/5। आपको इंक्रीज निकाला है, इंक्रीज का फ्रैक्शन अभी निकालने कैसे है, फॉर इंक्रीज सबट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये जो आपको मिला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर को वैसे ही रखा, सबट्रैक्ट न्यूमरेटर, सबट्रैक्ट 1 from 5,
So 5 में से 1 कर दिया, which you got as 1/4, and 1/4 is nothing but 25%. So 80 से 100 मिलने के लिए आपको 25% 80 को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आपको 100 मिलेगा. I hope this is very clear. कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है? You will gradually know the application of this technique.